हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज फ्राइडे है और आज मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर्स लेके आई हूँ। बट वो क्वेश्चन के आंसर्स करने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मैं लगता है रिसीविंग मोड में आ गई हूँ लोगों के मैनिफेस्टेशन को लेके। एक के बाद एक के बाद एक अच्छे अच्छे खबर सुनती रहती हूँ। मैंने ये मैनिफेस्ट कर लिया, मैंने ये मैनिफेस्ट कर लिया। कुछ लोग शेयर करना चाहते हैं तो मैं उनकी शेयर कर देती हूँ, कुछ लोग प्राइवेट रखना चाहते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन, समझ में आता है। तो वैसा ही एक और किसी ने मैनिफेस्टेशन किया है। मैं प्राइवेसी मेंटेन करती हूँ, बट मैं आपको दिखाऊंगी। कुछ ईमेल आई है मुझे उनके सक्सेस स्टोरी की, और वो एक ऑडियो क्लिप रिकॉर्ड करके बहुत अच्छी भेजी है। उन्होंने ऑडियो क्लिप इंग्लिश में करके भेजा है, तो जो इंग्लिश नहीं समझते हैं थोड़ा धीरज रखिएगा, मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी। उस ऑडियो क्लिप के बाद उन्होंने मैनिफेस्ट किया है, और उस ऑडियो क्लिप को मैं क्यों सुनाना चाह रही हूँ उसके पीछे रीज़न ये है कि उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि किस वीडियो से उन्होंने क्या उठाया, किस वीडियो से उन्होंने क्या उठाया, और कैसे उन्होंने एक छोटी सी ट्रिक करके अपना जो डर था, अपना जो उनकी रेजिस्टेंस थी, उसको कैसे ओवरकम किया है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये ईमेल आया है, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा होगा या नहीं। ओके, ये ईमेल है। ये ईमेल मुझे आज आया और मैं यहाँ क्लिक कर रही हूँ, पता नहीं दिखेगा। मैं ट्राई कर रही हूँ ताकि आप लोगों को यकीन हो। देखिए ये ईमेल है, ये ईमेल में एक वीडियो क्लिप आई है मुझे, और यहाँ मैं इन्हें प्ले कर रही हूँ ताकि आप लोग सुन सकें। चलिए। हाय रेती, हाउ आर यू? आपके बारे सॉरी, एक्चुअली थोड़ी सी लंबी वीडियो है, ऑडियो क्लिप है, लेकिन सुनिएगा एंड तक, क्योंकि उन्होंने अपने उतार और चढ़ाव दोनों को डिस्कस किया है इसमें। हाय रेती, हाउ आर यू? आपके बारे में मुझे अंजना जी से ही पता चला था, फिर उनकी बुक भी मैंने पढ़ी। फिर क्योंकि मैं भी ऑस्ट्रेलिया में ही रहती हूँ, तो देन आई लुक्ड फॉर यू हेयर एंड देयर ऑल डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, एंड दिस इज हाउ आई फाउंड you. And then I started watching your videos. I quite often catch up with Anjana ji's videos as well. But I think since we are living in a same around the same area, I can relate more to you, and especially your story, very recent story when you shared about your manifestation of the new house. Around the same time, we were about to move to a new house as well. So we moved from one rental property to another. We had this property, and mostly people have impression of the real estate agent saying they always look for ways to deduct the money from your security amount, and they don't return proper amount, or even if they do, then they do a lot of back and forth saying, okay, this is not clean, this is damaged, all of that stuff. So basically all that I heard is negative. So what is and also the agent agency I was associated with, I did not have very positive experience earlier, so I foresee that there something might happen. And then because I'm so well equipped with the information you shared, and a lot of I started reading books as well on law of attraction and everything, and I've been experiencing it since childhood anyway, ever since I started remembering things. So based on all of that, and the techniques you shared when you were talking about your house manifestation, I applied all the techniques. How? First of all, I started giving my thanks to the house I was living, and also the real estate agent I was dealing with, who was taking care of my and that property, previous house where we were living, and also the owner. So I was so thankful. Because obviously we moved from a different city, and we got that house just when we were away, like just online. So that trust and that support in the need and everything. So I was appreciating all the good things I had in house, and I started my business, and all the good things happened to my children, to my
to my family. So I was so grateful to that house. Second, I was so appreciative of the new property which we got. And as you mentioned few times that when you are living in this rental property, we should not treat that rental property as a rental property. It is actually our own house. We look at it from a lack, the space of lacking, saying, okay, this is, we will only decorate our house when our own house is built. But technically, if we see most of the time, especially in foreign countries, we always, take the mortgage and stuff. So it's not really our house. So why we see it differently from a rental house? So I started appreciating my new house, and just because the bond refund time was a bit longer, so it has already been 3 weeks since we moved to the new property, and bond refund only came today. Okay, long story short, so we vacated the previous house. We got it cleaned, professionally cleaned, but there were few items which was like, the items aged because of the house age, like house was aged. And also we lived in house for more than 1 year, and in 1 year, even if you're living in your own house and you're giving it the best care you can, still there are things, which will be changed in 1 year. And I was a bit concerned that they might not give us the full refund. Now, then I watched one of your other video where you said, we should not think like, okay, we are losing that money. Even if we lose that money, so for example, my whatever amount I had for my security bond, for example, 1,500 or 1,700, then I should think, okay, if the bond is deducted, it will pay off somebody's salary. It may, bring a bread and butter to someone's table. So I am so grateful that I'm so grateful to Bhagwan that I am in that position, that I am being a cause of somebody's bread and butter. So I just spreaded my arms and just enjoyed with the journey of, it was more of, how we have the game result. So I was waiting to hear from the agent on how much bond I'm going to get back and all that stuff. And I'm very, very grateful and happy to share with you that I got my 100% security bond refund. Although I had some communication and a bit of heated discussions earlier with the agent, not about bond, but for the other things, which may have adverse effect. So that was more of the principles, the principle discussion on the principles. So even like after all of that, still I got all my refund back. So I'm so grateful. The story here to share, not to share about those, few $100 or few $1,000. It's more of sharing about how the whole manifestation worked, and I applied like dot to dot. I would not call it processes, but I would say like I brought myself to alignment by listening to your videos. So I am so thankful, dear. Thank you so much. And anyway, I've booked my session with you. Okay, so now this is, अब जिन्हें समझ थोड़ी बहुत आई होगी या चाहते मैं एक्सप्लेन करूँ, तो ये मेरी वन ऑफ माय लिसनर है. उन्होंने मेरे से जुड़ी हुई है, मैं ईमेल करती रहती हैं, उन्होंने सेशन भी बुक किया हुआ है. इन्हें मेरी जो शेयरिंग थी वो हाउस वीडियो की, उससे उन्होंने क्या उठाया? उससे उन्होंने उठाया कि जहाँ है उसे ब्लेस कीजिए. पैसा जो उनको लग रहा था, बॉन्ड का पैसा जो उन्होंने भरा था, यहाँ तो भाई $2,000-3,000 तो रहता है, $1,00,000-1,50,000 रुपए रहते ही है कम से कम. तो मिनिमम मैं बोल रही हूँ, ज़्यादा ही होते हैं डिपेंडिंग आपके कितना रेंट पे आप रह रहे हैं. तो वो पैसा जाने का डर था, और कैसे उन्होंने उस डर को ओवरकम किया, उस चीज़ के लिए ब्लेस किया जो उन्हें पता था कि शायद नहीं मिलेगा, बट इसके लिए नहीं घबराई कि वो नहीं मिलेगा. वो सोची चलो कोई बात नहीं, इस पैसे से किसी और का घर चलेगा, इस पैसे से किसी की सैलरी जाएगी, इस पैसे से कोई किसी के घर में खाना आएगा. और इस थॉट प्रोसेस को चेंज कर देने से मात्र आज उन्हें 100% पैसा वापस मिल गया. तो ये सक्सेस स्टोरी आई थी मुझे. आज मैं जॉब पे थी और मुझे ईमेल आई, तो मैंने कहा भाई ये दिखानी तो है, बट चूंकि ईमेल आई थी तो मैंने सोचा कि लैपटॉप से ही दिखा दूं. अब मैं अंदर क्यों शूट कर रही हूँ घर पे, अगर आप लोगों को आवाज़ ठीक से नहीं आ रही होगी तो प्लीज़
बेयर कीजिए क्योंकि मेरा एकादशी क्रिया चल रहा है, 11 दिन का क्रिया होता है और मैं बाहर जब कार में शूट करती हूँ, गर्मी बहुत है तो मेरा वो एनर्जी बहुत हीट अप हो जाती है और मैं बिल्कुल थोड़ी परेशान होने लगती हूँ। जो कुछ व्यूअर्स ने नोटिस भी किया था कि मैं थोड़ी रेस्टलेस लग रही थी, तो इसके लिए मैं बाहर शूट नहीं कर रही हूँ, घर के अंदर शूट कर रही हूँ। और ये एकादशी कोई रिलीजियस क्रिया नहीं, ये योग क्रिया है जो 11 दिन करना पड़ता है और हर 3 महीने के गैप पे करना पड़ता है। तो इसमें कुछ छोड़ने वाली चीज़ भी नहीं थी कि मैं छोड़ सकती थी। तो अगर अंदर से आवाज़ आप लोगों को ठीक से नहीं सुनाई दे रही है तो बेयर कीजिए, थोड़ी सी अपने उसकी वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, सुन सकते हैं फिर बेटर हो जाएगा। मैं कान में वो लगाना नहीं चाहती बिकॉज मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता। मैं चाहती हूँ कि आपसे वैसे बात करूँ जैसे एक फ्रेंड से बात करती हूँ और मैं बहुत नेचुरल रखना चाहती हूँ। वो गैजेट्स लगा दीजिए तो नेचुरल फ्लो नहीं आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तो भी 10 मिनट चला गया इसमें, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों को इससे अलाइनमेंट मिलेगी कि सब चीज़ पॉसिबल है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ती हूँ। पहला क्वेश्चन ये है कि मैम आपने कहा था कि ये मुझे ईमेल में आया है तो मैं पढ़ रही हूँ। मैंने आपने कहा था कि इब्राहिम से ज़िंदगी बदलती है, फिर आपने चक्रा बताया, अब आप सिल्वा बता रही हैं। मैम आखिर क्या क्या करना पड़ेगा? ये मैंने कमेंट में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि लोग थोड़ा नेगेटिव ले लेंगे इस चीज़ को। तो मुझे सिर्फ ये जानना है कि आखिर कितने सारे चीज़ें करनी पड़ेंगी किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए। सो इब्राहिम समझ में आता है कि इब्राहिम के कारण आपको पीआर मिला, फिर आप चक्रा बोलती हैं, फिर आप सिल्वा बोल रही हैं। तो क्या सब करना ज़रूरी है? देखिए, पहली बात तो कोई भी सवाल ऑफ लिमिट नहीं है मेरे लिए, और आप लोग ये बिल्कुल मत सोचिए कि कोई सवाल पूछेगा तो मुझे बुरा लगेगा, क्योंकि सच मानिए आप लोगों के मन में जो भी सवाल आता है वो एक टाइम था जो मेरे मन में भी आया होगा, क्योंकि वो सारे सवालों से गुजर के मैं यहाँ आई हूँ। मुझे लगता है कि कोई भी लॉजिकल सवाल जो आप पूछिएगा, जो आपको लगेगा कि अरे ये कैसे होता है, तो ट्रस्ट मी वो सोच रखा है मैंने पहले। तो बिल्कुल इसमें नहीं आइए कि मैं कमेंट नहीं कर सकती, मैं नेगेटिव लगेगा लोगों को। बिल्कुल कीजिए, मैं हर चैलेंजिंग से चैलेंजिंग सवाल का जवाब देना चाहती हूँ, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके सवाल के जैसे कितने लोगों के मन में सवाल हो रहे होंगे और उनको किस तरीके से क्लैरिटी मिलेगी। तो ये रही इब्राहिम, चक्रा, और अब ये सिल्वा आ गया है। ये क्या है? तो मैं बताने वाली हूँ इन तीनों का कनेक्शन क्या है। इब्राहिम मैंने लॉन्च किया, तुरंत चक्रा लॉन्च नहीं किया। चाहती तो मैं डे 1 से चक्रा वीडियो बनाती, बट मैंने नहीं बनाया। रीज़न क्या है? आप जब बहुत लाइफ के सिचुएशन से खुश नहीं है, तभी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन सोच रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आप जहाँ हैं आपको और चाहिए, आप सेटिस्फाइड नहीं है। कुछ लोगों के साथ बहुत कॉन्ट्रास्ट चल रहा है। तो उस वक्त इब्राहिम को सुनने से क्या होता है? रिलीफ मिलती है। उस वक्त क्या होता है? आप इब्राहिम बोलती है खुद को ढूंढो, खुद को पकड़ो, खुद को सर्व करो। हम क्या करते हैं, जब परेशान रहते हैं तो अपनी परेशानी को तो छोड़ दीजिए, आसपास के लोगों के बारे में ज्यादा सुनते हैं। तो इसके लिए मैं इब्राहिम की वीडियोस सुनने कहती हूँ, इसके लिए मैं इब्राहिम के लेक्चर सुनने कहती हूँ, क्योंकि इब्राहिम जो है आपको खुद से प्यार करना सिखाती है। आपको बोलती है कोई बात नहीं, सब चीज़ ठीक हो जाएगा। जब आपको ये पता चल जाता है कि सब चीज़ ठीक हो सकता है उनके लेक्चर्स के द्वारा, उनकी बातों के द्वारा, क्योंकि मैं जो भी एक्सप्लेन करती हूँ वीडियोस में, इब्राहिम के लेक्चर्स एक्सप्लेन करती हूँ। इब्राहिम ने ये बोला, इब्राहिम ने ये बोला, क्योंकि पूरी चैनल ही इब्राहिम एक्स हिंदी है। अब यहाँ मैं चक्रा नहीं बताती हूँ क्योंकि चक्रा गाइडेड होना चाहिए। अब चक्रा क्यों आया? क्योंकि मैं पहले इब्राहिम बताना चाह रही थी ताकि आप लोगों को पता चले कि होता है, क्योंकि इब्राहिम एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी है और बहुत सक्सेस स्टोरी है उनकी। चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकती है अगर अपने अलाइनमेंट में आओ तो, अगर अपने खुशहाली में आओ तो, अगर तुम खुश रहना सीखो तो, हर एक एस्पेक्ट को डिफरेंट नज़रिए से देखना शुरू करो तो। कुछ लोग इतने में ही बहुत खुश हो जाते हैं और अचीव करने लगते हैं, उनको बाकी दोनों चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है या नहीं सीखना चाहते। बट बहुत रेयरली मैंने सिर्फ एक ही जन को सिखाने की कोशिश की थी जिसको इंटरेस्ट नहीं था, बट अब मैं देख रही हूँ कि चेंजेस दिख रहे हैं। बट कोई बात नहीं, इब्राहिम की स्टोरी यहाँ होती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है चक्रा। चक्रा क्यों है? क्योंकि आप एक खुद को एक ह्यूमन समझते हैं,
आपको लगता है एक ह्यूमन बीइंग है आप, और एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के लिए आए हैं। जो अब्राहम की वीडियो में सुनने से आपको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस मिलता है, आध्यात्मिक ज्ञान मिलती है, और आपको लगता है कि जो आध्यात्मिक एक्सपीरियंस आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं उनकी लेक्चर सुन के, वो आप ह्यूमन बीइंग हैं और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस ले रहे हैं। जबकि है उल्टा। उल्टा इसलिए है क्योंकि हम लोग सब एक स्पिरिचुअल बीइंग हैं जो इस यहाँ पे ह्यूमन एक्सपीरियंस लेने के लिए आए हैं। वरना तो शरीर की जो सेल्स है, साइंटिफिकली डॉक्टर्स मानते हैं, सब जानते हैं, प्रूवन है कि 7 से 10 साल में आपकी बॉडी की कंप्लीटली सेल चेंज हो जाती है। तो जो रेवती 10 साल पहले थी, आज मैं वो नहीं हूँ। अगर मैं इस बॉडी को सच मानती हूँ, अगर मैं इस बॉडी को रियल मानती हूँ, तो 10 साल वाली रेवती कहाँ चली गई? अगर ये मेरा हाथ है तो 10 साल पहले वाला हाथ किसका था? तो कहीं ना कहीं ये जो हम एक्सपीरियंस देख रहे हैं, ये सिर्फ एक ह्यूमन एक्सपीरियंस है, और खुद को इतना डिटैच करना होता है। तो मैनिफेस्टेशन में वो पावर आती है, क्योंकि आप जब अपने आप को स्पिरिचुअल बीइंग समझते हैं ह्यूमन एक्सपीरियंस के लिए, तो आपकी ह्यूमन एक्सपीरियंस बेटर होने लगती है। आपके ह्यूमन एक्सपीरियंस में चीज़ें और अच्छी अच्छी आने लगती है, क्योंकि हम लोग सब एनर्जी के बने हैं। अगर आप अपनी हाथ को एटॉमिक माइक्रोस्कोप में देखिएगा, जैसे एटम्स देखे जाते हैं, तो आपको हाथ दिखिएगा ही नहीं, एक वास्ट यूनिवर्स दिखेगा जिसमें ढेर सारे एटम्स हैं। तो हम लोग सब एनर्जी के बने हुए हैं, और अपनी एनर्जी को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा ये नहीं कि सिर्फ दीपक चोपड़ा बोलता है। आज की डेट में देखिए सारे, आज बहुत मेरे कमेंट कहते हैं मैम जो डिस्पेंजा के वीडियोस डालिए। जो डिस्पेंजा क्या है, सिर्फ चक्रा पे बताते हैं, बट वही मुझे एक जो डिस्पेंजा की चीज़ अच्छी नहीं लगती है कि सीखा तो चक्रा से है, बट क्रेडिट नहीं देते हैं। वो क्रेडिट कहते हैं मैंने यहाँ कॉर्टेक्स में देखा, वो पूरा का पूरा चक्र सिखाते हैं। अगर आप योग की बुक्स पढ़िएगा, और दीपक चोपड़ा जो सिखाते हैं वो जो डिस्पेंजा जो सिखाते हैं पूरा चक्र सिखाते हैं। तो हर एक वेस्टर्न टीचर चक्र सिखा रहा है, हर एक वेस्टर्न टीचर आपको एनर्जी सिखा रही है। और एनर्जी सीखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए आप कितने पावरफुल हैं, आप कितने ज़्यादा पावरफुल हैं, ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। और यहीं पे चक्र आता है, क्योंकि जब आप चक्र अलाइन करते हैं तो अपने पावर का एहसास होने लगता है। जिन्होंने मास्टर क्लासेस ज्वाइन की है उनको मैंने फिजिकल प्रूफ भी दिया था, आप लोगों को पता होगा कि कैसे क्या हुआ था उसमें मैजिकल। तो ये बिलीव देने के लिए कि चक्रा है, एनर्जी है, और हम एनर्जी के बने हैं, ताकि आप खुद को एक स्पिरिचुअल बीइंग समझिए, और इस जीवन को एक सिर्फ ह्यूमन एक्सपीरियंस के तौर पे जिएंगे, तो आपकी लाइफ इजी होगी। अब सिल्वा कैसे आ गया? भाई कितना भी मैं बोल दूं कि आप स्पिरिचुअल बीइंग हैं और ह्यूमन एक्सपीरियंस लेने आए हैं, और सब कुछ यहाँ से होता है, अलाइनमेंट से होता है, बट हमारी जो एक एक्शन ओरिएंटेशन है, हमारी एक्शन ओरिएंटेशन हर चीज़ में प्रोसेस, आप लोग बहुत पूछते हैं ये प्रोसेस कैसे किया, वो प्रोसेस कैसे किया, तो वो हमारी ह्यूमन नेचर है प्रोसेस करने का, क्योंकि हम एक्शन ओरिएंटेड है। अब यहाँ सिल्वा आता है, बिकॉज सिल्वा जब आप सीखिएगा तो आपको ना सिर्फ ये सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि मैंने कुछ प्रोसेस किया है, क्योंकि वो थोड़ा प्रोसेस ओरिएंटेड है, लिखना विखना नहीं है, मेंटल प्रोसेस ओरिएंटेड है। दूसरा, सिल्वा सीखने से आपको जो स्पिरिचुअल ह्यूमन बीइंग का कनेक्शन है वो समझ में आएगा, क्योंकि सिल्वा जब आपको अल्फा फ्रीक्वेंसी में डालता है और आप वाइड अवेक रहते हैं, तब आप अल्फा में जाते हैं, आपको सोने की जरूरत नहीं पड़ती है अल्फा में जाने के लिए, तो आपका कनेक्शन बनता है उससे, और आपको फिर दिखने लगती है, जो एक साइकिक एबिलिटी बोलते हैं, वो धीरे धीरे लोगों को आने लगती है। तो कहीं ना कहीं मैं आप सबको ये विश्वास दिलाना चाह रही हूँ कि आप सब में अमेजिंग ताकत है जो आप लोग नहीं जानते हैं अभी। अब्राहम आपको खुद से प्यार करना सिखाती है, चक्र आपको अपनी ताकत का एहसास दिलाता है, और सिल्वा उस ताकत, उस कनेक्शन, उस एनर्जी को जोड़ता है सोर्स से। इसके लिए ये तीनों प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। अगर मैं कहूँगी सिर्फ सिल्वा सीख लो, अब्राहम मत सुनो, तो मैं गलत बोलूँगी, क्योंकि मैं अब्राहम भी सुनती हूँ, मैं चक्र रोज़ करती हूँ, मैं सिल्वा की जो मेन चीज़ है वो करती हूँ, लेकिन सिल्वा तभी करती हूँ जब मुझे कुछ चाहिए होता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा
मैनिफेस्ट नहीं करना चाहते जब आपको पता होता है कि जब चाहो तो मैनिफेस्ट हो ही जाता है, तो डिज़ायर थोड़ी होती है, शांत हो जाती है, उतना ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रहता है डिज़ायर से। जब आप खुद को एक स्पिरिचुअल बीइंग समझते हैं, एक ह्यूमन एक्सपीरियंस में आने के लिए, तो फिर आपको ये अब लगता नहीं है कि ये मेरा हाथ है, आपको लगता है ये एक हाथ है, क्योंकि मैं जो हूँ वो 10 साल पहले ये मेरा हाथ नहीं था, इसके सारे सेल्स चेंज हो चुके हैं। और सिल्वा से बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स भी आए हैं, लोगों की हेल्थ बहुत अच्छी हुई है, लोग छोटे से छोटे मैनिफेस्टेशन से बड़े मैनिफेस्टेशन किया है। हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, शादी हो, जॉब हो, प्रमोशन हो, लॉटरी हो, कॉन्टेस्ट हो, तो और हेलीन हैट्सल की जो स्टोरी है, मैं उनका स्पेक मेथड भी थोड़ा फॉलो करती हूँ। स्पेक मेथड क्या है? सेलेक्ट, प्रोजेक्ट, एक्सपेक्ट एंड कलेक्ट, ये इनका स्पेक मेथड है जो मैं यूज करती हूँ। तो जो आएंगे सिल्वा सीखने, उनको वो भी बताऊंगी कैसे करते हैं। तो ये रही आपकी एक्सप्लेनेशन। अब आगे बढ़ती हूँ, बहुत सारे कमेंट्स हैं। मैम आपका नेक्स्ट सेशन कब होगा? मैं अभी सिल्वा ला रही हूँ 13 मार्च को, और उसके बाद मास्टर क्लास की अगर आप बात करें जिसमें मैं चक्र सिखाती हूँ, तो वो होगी 27 तारीख को। मैम प्लीज प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट कैसे करें, मुझे माँ बनना है। मैम प्लीज ब्लेस मी। दो वीडियो है मेरे इस पे, एक तो प्रेगनेंसी की एफर्मेशन है, दूसरा मैंने कैसे मैनिफेस्ट किया था उस पे है। एक अब्राहम के लेक्चर है, प्रेगनेंसी कैसे मैनिफेस्ट किया था, एक औरत ने, किसी लेक्चर में घुसा हुआ है, वो मुझे याद नहीं है, आप देखना चाहती हैं तो देख सकती हैं। अगर सिल्वा सीखना है, प्रेगनेंसी में सिल्वा भी बहुत काम करता है, अगर सीखना है तो आप आ जाइए 13 मार्च को। बाकी मेरी वीडियो जो है प्रेगनेंसी मैंने कैसे मैनिफेस्ट की थी, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, वो करके देखिए। और कितने भी क्वेश्चन हो, ये कैसे करते वो कैसे करते हैं, क्वेश्चन का आंसर यही है, अलाइनमेंट में आके। और अलाइनमेंट में कैसे आते हैं? खुश रह के, ब्लेस करके, हैप्पी रह के। बाकी जब आप इस हैप्पी खुश रहने के स्टेज पे आ जाते हैं, तब एनर्जी आती है, तब सिल्वा आता है, तब मैनिफेस्टेशन में पावर आती है, तब तो फिर सोचने भर की देरी होती है और चीजें हो जाती है। बट डिजायर और बिलीव होना चाहिए। अगर मेरे डिजायर ही नहीं है, बस इसके लिए कर रही हूँ वो प्रोसेस क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे हस्बैंड बोलेंगे या मेरे परिवार को चाहिए, तो वो नहीं मैनिफेस्ट होता है। तो डिजायर और बिलीव दोनों होना चाहिए। दी मैं सिविल सर्विस ऑफिसर से शादी करना चाहती हूँ और खुद भी तैयारी करती हूँ। मैंने आपका पार्टनर मैनिफेस्ट का वीडियो देखा, उसमें व्हील में क्वालिटी लिखने के बाद कैसे दिन भर महसूस करूं, ये समझ नहीं पाई। अरे आपको इमेजिन, कैसे हम बचपन में डे ड्रीम करते हैं, प्लीज बताइए। मेरी जॉब का भी बताइए प्लीज, थैंक यू। देखिए, डे ड्रीम करना मतलब होता है कि कैसे बचपन में हम लोग कहते हैं कि ये मेरा प्रिटेंड प्ले होता है, कि ये देखो मेरी फ्रेंड है। बारबी की टॉयज से कैसे खेलते थे बचपन में, किसी को बताने की क्या जरूरत है, फेस रहे नहीं रहे, आप प्रिटेंड कीजिए कि वो आपके साथ है, तो वही होती है। देखिए, दिमाग को तो खुद ही ट्रिक करना पड़ता है। अब ये तो कोई आपको बताएगा नहीं कि ये सोचो, ऐसे सोचो, ऐसे सोचो। मैं बता भी दूंगी, मैं आपको एक सिनेरियो बता भी दूंगी। अब चूंकि आपकी सृजन नहीं है वो, आपका क्रिएशन नहीं है वो, तो कॉन्शियस माइंड रिजेक्ट कर देगा। तो अपने आप को क्रिएटिव बनाइए। और यही रीजन है कि मैं कहती हूँ एनर्जी पे काम कीजिए, यही रीजन है कि मैं बोलती हूँ मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता कितनी ताकत है इसमें। अगर बिफोर मेडिटेशन की रेवती देखिए और आफ्टर ये चक्रा मेडिटेशन की रेवती देखिए, मैं एक दिन में कितना कुछ अकॉम्प्लिश करती हूँ। आपको पता है, कभी कभी मैं बैठ के सोचती हूँ तो मुझे खुद में आश्चर्य लगता है मैं कैसे कर लेती हूँ। यही रेवती थी जो सुबह उठती थी तो उसको सिर्फ दोपहर का खाना बनाना भी भारी लगता था घर पे, कहते थे कितना ज्यादा काम है। आज मैं 8 घंटे नौकरी करने के बाद वीडियो शूट करती हूँ, पर्सनल सेशन देती हूँ, यहाँ का मेरे क्लासेस चलते हैं, फ्रेंड्स के साथ पार्टी होती है मेरी, हस्बैंड है, बच्चा है, और सब आराम से हो जाता है क्योंकि मुझे पता नहीं अंदर से एनर्जी रहती है और मैं खुशी खुशी करती हूँ। ऐसा मुझे कुछ टायर्ड नहीं लगता है। मेरी बहन मुझे फोन करके बोलती तुम आराम कब करती हो, तुम तो वीकेंड्स पे भी काम कर रही हो। मैंने कहा मुझे आराम की जरूरत ही नहीं पड़ती, पता नहीं क्या है।
तो मेडिटेशन चक्रा वर्क आपको वो जो एक फ्यूल है ना, जो पेट्रोल चाहिए गाड़ी चलाने के लिए, वो प्रोवाइड करता है। इसके लिए मैं इतना ज़्यादा एडवोकेट हूँ इन चीज़ों की। Wanted to ask you, what should be done in case one has manifested a dream job but not the dream salary package in it? What's the process technique should be applied in that same dream job is going to pay the dream salary soon in future? Please guide. देखिए, ये तो बहुत अमेजिंग है कि आपने ड्रीम जॉब मैनिफेस्ट कर लिया, तो कभी इस चीज़ पे अटकिए नहीं कि यार सैलरी नहीं मिली। जितनी सैलरी मिल रही है ना, उसको ब्लेस करना शुरू कीजिए। उस सैलरी को देख के खुश होइए, उस बैंक के नोट को देख के खुश होइए। और वही जॉब में या तो आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, या फिर उस जॉब से और बेटर जॉब मिल जाएगा जिसमें और सैलरी होगी और आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। आप देख ही रहे हैं मेरे चैनल पे, पहले आकांक्षा ने किया था, अब अंशिका ने किया है। अंशिका के वीडियो पे किसी दूसरे श्वेता ने कमेंट किया है कि उनको जॉब मिल गई है। उनकी भी है कि सेम टू सेम आया। आज मेरे साथ मेरी बेटी के यूकेजी के एडमिशन लेने के लिए स्कूल गई और उन्होंने मुझे सामने से जॉब ऑफर किया। मुझे भी घर चल के जॉब आया, मैंने कोई कोशिश नहीं की। सैलरी की भी बहुत ज्यादा दे रहे हैं मुझे, थैंक्स। देखिए, तो कैसे लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो जो मिला है उसको अगर आप इंजॉय करके खुश हो जाइएगा ना, वो चीज नहीं देखिएगा कि अरे इसमें ये नहीं है, तो वो जो चीज आप ध्यान देना बंद कर दीजिएगा, वो मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाता है। तो जॉब मिल गया है, कंग्रेचुलेशंस, बहुत खुश होइए, बहुत ब्लेस कीजिए। हर दिन उस जॉब को थैंक यू बोलिए और उस सैलरी को थैंक यू बोलिए जितना आपको मिल रहा है, और देखिए सैलरी कैसे बढ़ती है आपकी। प्लीज हेल्प मी, मुझे भी जॉब चाहिए, क्या करूं? खुश रहिए, जॉब अफर्मेशन सुनिए सोते वक्त, और इब्राहिम की वीडियो सुनिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए और बोलिए जॉब मिल गई है। इस इत्मीनान में रहिए कि जॉब मिल गई है। देखिए जॉब मिलेगी। बेसिकली क्या होता है, मैं जब लोगों को बोलती हूँ जॉब मिल गई है, सोचिए, तो लोग कहते हैं अरे ऐसे ऐसे कैसे सोचने पर जाएगा, तो बिलीव ही नहीं है तो कैसे होगा? बिलीव तो करना पड़ता है। मतलब मुझे इतना ढूंढना पड़ रहा है आप लोगों के क्वेश्चन, इतने प्यार आप लोगों, तो मुझे तो भगवान जी थैंक यू। मतलब इतना प्यार मिलता है मुझे इस चैनल के जरिए कि मैं हर दिन ग्रैटिट्यूड में रहती हूँ। मैं सुबह उठती हूँ ग्रैटिट्यूड में, सोती हूँ ग्रैटिट्यूड में। इस YouTube ने इतने सारे अमेजिंग लोगों के साथ जोड़ा है मुझे, और इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस आते हैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ। हेलो मैम, प्लीज आंसर में, मुझे अपनी लाइफ चेंज करनी है, कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा है मुझे जीने का। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानती हूँ, द सीक्रेट भी पढ़ा है, फॉलो नहीं करती हूँ। फॉलो भी कर फीड पढ़ा है, फॉलो नहीं करती हूँ, पर 6 सालों से स्टक हो गई हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ, प्लीज हेल्प। मुझे नहीं समझ में, आप फॉलो नहीं करती हैं का मतलब, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करती हैं, मतलब आप मानती हैं, अगर आप समझती हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, तो फॉलो कीजिए, अब्राहम की लेक्चर्स सुनिए। चक्रा सीखना है तो चक्रा सीख लीजिए, क्योंकि चक्रा से आपको एडेड एडवांटेज मिल जाता है, पुरानी चीजें भूल जाती हैं, रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। और एक चीज मैं बोलूंगी, जिन लोगों ने मास्टर क्लासेस ज्वाइन किया है, देखिए आप लोगों के पास ना एडेड एडवांटेज है, तो इस समय कोशिश कीजिए मुंह से गलत शब्द नहीं निकालने के, क्योंकि आप ऑलरेडी लॉ ऑफ अट्रैक्शन जान रहे हैं, अब आपने चक्रा भी सीख लिया है, अब आपके मुंह से जो निकलेगा, मैनिफेस्टेशन का जो टाइम है ना, वो छोटा होते जा रहा है अब आपका। तो हमेशा वही निकालिए जो चाहिए। सारे लोगों से बोल रही हूँ जिन्होंने मास्टर क्लास ज्वाइन किया है, भले आपको यकीन हो नहीं हो, मुंह से सिर्फ वही निकालिए जो आपको चाहिए। और सोचने में भी नेगेटिव अगर कोई थॉट आए तो उसको जल्दी रिप्लेस कीजिए दूसरे अच्छे थॉट से, और घबरा के नहीं रिप्लेस कीजिए। जैसे नेगेटिव थॉट आया तो बोलिए चुप रहो, मुझे सब कुछ आता है। ऐसे सेल्फ टॉक को डांट के चेंज कर देना है, क्योंकि अब आपका जो गैप है मैनिफेस्टेशन के पीरियड का, जो जेस्टेशन पीरियड है, वो छोटा हो गया है। तो कुछ लोगों का के गलत शब्द तुरंत मैनिफेस्ट हो जाएंगे, तो ये भी ध्यान रखिएगा। वो मैंने बताना भूल गई थी, तो अभी बता रही हूँ, आप लोग सुने होंगे तो। और यही रीजन है कि मैं चक्रा पहले नहीं बताती हूँ, पहले मैं अब्राहम बोलती हूँ सुनने, क्योंकि अब्राहम जो सुन लेते हैं तो वो शब्द सही निकालना शुरू करते हैं
और फिर जब चक्रा करते हैं तो उनको वो पावर आ जाती है। और जब सिल्वा करते हैं तो मैनिफेस्टेशन, छोटे 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 मैनिफेस्टेशन होते हैं, तो और बिलीव बढ़ना शुरू हो जाता है। और जो चीज़ चाहिए उसको करने के लिए आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। आपके जब एनर्जी अलाइंड है तो आपके बॉडी में एनर्जी भी प्रोवाइड होगी इस चीज़ को लेकर। रेवती प्लीज, मैनिफेस्टेशन के लिए स्पेसिफिक फिगर होना चाहिए क्या? इफ राइट नाउ पर्सन इज नॉट अर्निंग अ सिंगल पेनी देन बिग टारगेट कर सकते हैं? आई नो यूनिवर्स के लिए बिग और स्मॉल कुछ नहीं होता है, क्लियर कीजिए। देखिए बिल्कुल कर सकते हैं, और कोई टारगेट बड़ा या छोटा होता ही नहीं है, तो आप स्पेसिफिक अमाउंट भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बेटर क्या होता है ना, जैसे सिल्वा में आप 3-4 चीज एक साथ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप टारगेट डाल के मैनिफेस्ट करते हैं, बट उसमें भी जो स्मार्ट सिल्वा ट्रेंड है वो बोलते हैं कि कभी भी कोई कुछ मैनिफेस्ट करने जाइए तो बोलिए ये मेरी डिजायर है, या तो ये दे दो या इससे बेटर दे दो। तो क्या होता है, आप एवेन्यूज खोल दिए रहते हैं। ये मेरी डिजायर है, या तो ये दे दो या तो इससे बेटर दे दो। तो यहां से आपके एवेन्यूज खुलते हैं और चीजें मैनिफेस्ट जितना चाहिए उससे बेटर मिलने लगता है, उससे ऊपर मिलने लगता है। दीदी प्लीज मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई देना। सबकॉन्शियस माइंड नहीं की भाषा नहीं समझता, जिसे मैंने सीक्रेट बुक में पढ़ा था, एंड लेट नहीं होना चाहता, मतलब लेट होना चाहता हूँ। मैंने आपने पूछा था कि मुझे शादी नहीं करनी है, मेरे मन में हमेशा यही अफर्म करती हूँ कि मुझे मेरी शादी नहीं होगी, तो क्या दी इसका मतलब ये है कि मेरी शादी होगी? प्लीज मुझे ये नहीं वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दीजिए। सीक्रेट के लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि सीक्रेट ने दुनिया भर में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पॉपुलर कर दिया। बट वो पॉपुलर तो किया, बट एक चीज कर दिया, लोगों को बोला सिर्फ बोली से होता है। अच्छा आप बताइए, आप रोज बोल रहे हैं कि मैं बहुत अमीर हूं, मैं बहुत अमीर हूं, और मन में आपको लग ही नहीं रहा है कि आप अमीर हैं, आपको बिलीव ही नहीं कि आप अमीर हैं, आपको लगता ही नहीं कि आप डिजर्व करते हैं अमीर होना, तो सिर्फ बोलने से आप अमीर हो जाएंगे? वैसे ही है, अब्राहम की बात मानिएगा तो अब्राहम तो बिल्कुल नहीं बोलते। शब्द कुछ भी हो, शब्द संभाल के यूज करना चाहिए, क्योंकि लगातार 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 आप बोलिएगा तो वो हो जाएगी। आप लगातार नहीं बोल रही हैं तो आपकी शादी कैसे होगी? ये जो कॉन्सेप्ट है उल्टा समझने का कि नहीं समझता है यूनिवर्स, ऐसा नहीं है। यूनिवर्स सब चीज समझता है। अगर आपको शादी करनी है तो उल्टा क्यों बोलना है? ये बोलिए मेरी शादी हो चुकी है। अगर आपको शादी करनी है तो बोलिए आपकी शादी हो चुकी है। अगर आपको शादी नहीं करनी है, आपको कुछ और करना है और आपको लग रहा है कि आपकी शादी हो जाएगी, तो फियर को निकाल दीजिए। नहीं क्यों बोलना है? नहीं बोलने से ऐसा नहीं होता है कि वो नहीं बोलने से वो हो जाएगा या उल्टा है, ऐसा नहीं होता। यूनिवर्स आपके वाइब्रेशन को पकड़ता है। हम लोग सब एनर्जी के सोर्स हैं, और हम लोग सब एनर्जी हैं, और हम लोगों की एनर्जी का सोर्स ऊपर है। तो आप मुंह से कुछ भी निकालिए, आपके मन में, आपके वाइब्रेशन में, आपकी बॉडी, यहाँ तक कि एक एक सेल से वाइब्रेशन आती है, उससे जो भी निकलता है वो कैसे यूनिवर्स नहीं समझेगा? आपके हर एक सेल से डिमांड जाती है। तो सिर्फ मुंह से नहीं बोल देने से क्या होगा? अगर मन में अगर आपके हाँ है तो हाँ ही होगी। तो ये शब्दों के उस पर मत पकड़िए। मैं तो अलाइनमेंट पे विश्वास करती हूँ, मैं तो मेंटल वर्क पे विश्वास करती हूँ, तो मैं इसमें आपको नहीं बोलूंगी ऐसा करने। आपको जो चाहिए आप वो बोलिए। मैम हमने अभी मेडिटेशन करना स्टार्ट किया है 20 डेज अगो, और अभी बहुत अच्छे से नहीं कर पाती हूँ। एलओए भी बिगिनर हूँ, तो क्या हम सब सिल्वा मेथड सीख सकते हैं या मैनिफेस्टेशन होने में वर्क करेगा? क्योंकि अभी बिगिनर हूँ, हम इस हिसाब से आपके जितना वाइब्रेशन में हम नहीं हैं। देखिए सबसे बड़ी शर्त है सिल्वा वर्क करने में, आपको बिलीव होना चाहिए। तो अगर आप बिगिनर हैं तो आपका बिलीव अभी उतना स्ट्रांग नहीं है। दूसरा, आपको खुश होना पड़ेगा। तो अगर आपकी एनर्जी अलाइंड नहीं है तो आप खुश नहीं रहिएगा। तो अगर जो बिल्कुल बिगनर है, नहीं अभी तक कुछ मैनिफेस्ट किया है या उतना विश्वास नहीं है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, मैं उनको बोलती हूँ आप
सिल्वा अभी मत सीखिए, अभी आप मास्टर क्लास में आइए, क्योंकि मास्टर क्लास में सबूत मिलते हैं। हेलो मैम, मैं मेरा एक डाउट है। मैं जो LOA पर ट्रस्ट है, मैं स्टार्ट भी किया है मैम, पर मैम अलाइंड एक्शन का वेट करने की वजह से मैं एक्शन ही नहीं हो ले पा रही हूँ। एम्प्टी फील हो रहा है। रात को अफर्मेशन भी सुनती हूँ, कुछ मिस हो रहा है मैम, जो समझ नहीं आ रहा है, इंट्यूशन नहीं आ रहा है। और मेडिटेशन में भी आंखों के बीच फोरहेड पर पेन होने लगता है। मेडिटेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है। प्लीज गाइड मी, मैं क्या करूँ? कुछ दिन का ब्रेक लूँ? प्लीज गाइड मी। अलाइंड एक्शन जब होना है, मतलब आपको इम्पल्स आएगी वो करो। तो अगर आपको इम्पल्स नहीं आ रही है, या फिर आपको आ रही है और आप इग्नोर कर रहे हैं, इसमें डिफरेंस पता चलना पड़ेगा। और मेडिटेशन में आपको दर्द हो रहा है क्योंकि आप यहाँ पे फोकस कर रहे हैं। यहाँ फोकस नहीं करना होता है, आपको सिर्फ आंख बंद करके सोचना होता है कि मैं कुछ नहीं सोचूंगी। और ये भी नहीं सोचना होता है। जब थॉट्स आते हैं तो उसको उसकी जगह पे एक्नॉलेज करके छोड़ देना होता है। आपको थॉटलेस होना होता है मेडिटेशन में। अलाइंड एक्शन अगर आपको लग रहा है कि वेट करने पड़ रहा है, तो फिर मैं क्या बोलूँ इसमें, क्योंकि अगर मुझे आइसक्रीम खानी है, मैं पूरे रही हूँ मुझे आइसक्रीम खानी है, मुझे आइसक्रीम खानी है, मुझे आइसक्रीम खानी है, मुझे आइसक्रीम खानी है, और मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ आइसक्रीम ठंडी ठंडी मेरे गले के नीचे जा रही है, तो मेरी इच्छा होगी कि मैं उठ के फ्रिज खोलूँ और उसमें से आइसक्रीम निकालूँ। तो जब आप पूरे दिन अपने डिज़ायर के बारे में बात कर रहे हैं, आप पूरे दिन अपने डिज़ायर के बारे में सोच रहे हैं, एक्साइटेड हो रहे हैं, उसकी फीलिंग को ला रहे हैं, तो एक्शन करने का कैसे मन नहीं करेगा? ज़रा सोचिए। दी, अगर पार्टनर की शादी कहीं और फिक्स हो गई है, मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, तो कौन सी क्लास ज्वाइन करूँ? उसके घर वालों ने उनके इमोशनल करके उनकी ज़बरदस्ती शादी फिक्स कर दी है। देखिए, फिक्स हो गई है, अब साल महीने 2 महीने में हो जाएगी शादी, तो फिर मैं तो कहूँगी मास्टर क्लास आइए, आपको निकलना सिखा दूंगी इस डिप्रेशन के इससे। क्योंकि हमें लगता है कि वही अल्टीमेट था, बट जो यूनिवर्स है कहता है एक और लो, एक और लो। कोई ट्रेन नहीं छूटती, एक छूटती है दूसरी आती है। बट हमें क्या है, हमें खुश रहना नहीं है, हमें हमें दुखी रहना है उसी चीज को चाहने के लिए। हमारा जो अटैचमेंट है चीजों को लेके, कि अटैचमेंट, मुझे यही चाहिए और ये नहीं मिल रहा है तो मैं दुखी रहूंगी, जबकि यूनिवर्स कह रहा है रुको रुको, इसके जैसे जैसे बहुत है मेरे पास। अटैचमेंट छोड़ो, लेट गो करो अटैचमेंट को। तो ये जो अटैचमेंट छोड़ने की बात है ना, वो मैं मास्टर क्लास में सिखाती हूँ। और जब अटैचमेंट छोड़िएगा तो आपको खुश रहने के लिए ऐसे ऐसे रीजंस मिलते हैं कि ये तो बहुत छोटी सी बात लगेगी आपको, एक अपनी लाइफ का एक चैप्टर लगेगा जो बीत गया है। मैम प्लीज 7 चक्र के बारे में बताइए। हमारे बॉडी में 7 चक्र है, और सातों चक्र, हमारी बॉडी में 114 चक्र है योग के हिसाब से, और 7 मेन चक्र हैं। 7 मेन चक्र हैं। और ये जो चक्र या एनर्जी सेंटर्स की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ योग में नहीं है, ये थाई ये चीगोंग है, चाइनीज उसमें है, रेकी जापानीज है उसमें है, इजिप्ट में मिला है कि इजिप्शियन जो थे वो लोग भी एनर्जी पे, चक्रस पे काम करते थे। पेरू में इसके सबूत मिले हैं चक्र सिस्टम के। नॉर्थ अमेरिका, वहाँ पे भी चक्र सिस्टम किया जाता है। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं कि योग से निकला है, हर एक सिविलाइजेशन में जो अलाइंड लोग थे वो चक्रस पे काम करते ही थे। तो 7 चक्र है हमारी बॉडी के, और सातों चक्र जो हैं उनको क्लीन रहना पड़ता है ताकि एनर्जी फ्लो कर सके उसमें। और जब एनर्जी फ्लो करती है तो फिर आपको नए नए द्वार खुलते दिखेंगे। इस दुनिया में कोई भी कहीं दूसरी दुनिया से कुछ लेके नहीं आया है।
जो भी पाया है इसी दुनिया में रह के पाया है। हमें लगता है मैजिकल हो गई उसकी लाइफ, बट वो सही समय पे सही डिसीजन लेके वो चीज़ पाया है। तो जब आपके चक्र अलाइंड होते हैं तो आपको सही समय पे सही डिसीजन लेने की एबिलिटी आ जाती है, और थोड़ी साइकिक एबिलिटी भी आ जाती है, इंट्यूशन बढ़ने लगता है आपका, आपके हेल्थ बेटर हो जाते हैं, आपका वेट लूज होना लगता है जिनको वेट लूज करना है। क्योंकि चक्र अगर आप बहुत डरपोक हैं तो आप या डरते हैं, हर चीज़ पे फियर है आपके अंदर, तो आपकी बॉडी फूल जाती है क्योंकि उसको लगता है चक्र। क्योंकि जब आप डरते हैं तो आपकी एनर्जी लूज करना शुरू करते हैं, और आप एनर्जी लूज करते हैं तो बॉडी फूल जाती है क्योंकि उसको लगता है कि बहुत सारी एनर्जी स्टोर करनी है। वैसे ही जब आप को आसपास रहने में खुशी नहीं मिल रही है अपने सिचुएशन में, आपको कहीं ना कहीं घिन आती है। जैसे मैं बचपन में बहुत पतली थी, बहुत पतली। क्यों? क्योंकि मैं जब अपने वहाँ रहती थी तो बड़े लोगों की जॉइंट फैमिली थी, और मुझे उस किचन में खाना खाने में घिन आती थी, क्योंकि जो जॉइंट फैमिली थी और बहुत कुक्स और रसोई खाना बनाते थे वो रसोई में। और पता ही है आपको, जब घर की औरतें नहीं जाती है तो घर की साफ सफाई होती नहीं है, पता नहीं अंदर से घिन आती थी मुझे। मुझे लगता था कि यार कैसे क्लीन नहीं दे रहे हैं, तो मैं बस घुसती थी, वो प्लेट लेती थी और भाग आती थी बाहर। और मैं इतनी पतली थी क्योंकि कहीं ना कहीं मैं घिन दे रही थी, घृणा दे रही थी अपने एनवायरनमेंट को, और मेरी जो एनर्जी थी वो छिन्न होती चली जा रही थी। और जैसे ही मैंने फिर जगह चेंज किया तो मतलब मैं जहाँ पहली बढ़ी वहाँ से फिर मैं दूसरे शहर गई पढ़ाई करने के लिए। तो बहुत बढ़िया फ्लैट था, अच्छी चीज क्लीन थी, मम्मी ज़्यादा इन्वॉल्व थी किचन में, तो साफ थी, तो अच्छे से खाने लगी, तो बॉडी फूल गई। तो वही होती है, जब बॉडी नॉर्मल हो गई मतलब जो एनर्जी है वो छिन्न होने लगती है अगर आप घृण दे रहे हैं तो। और आप डरते हैं तो आपकी एनर्जी स्टोर करने लगती है बॉडी। बट जो सिचुएशन नहीं चेंज कर सकते, जैसे मैं, मेरे पास ऑप्शन आ गई थी बट वो भी बहुत सालों बाद आई, जो नहीं चेंज कर सकते वो कैसे अपनी एनर्जी बैलेंस करेंगे, कैसे एनर्जी को कंट्रोल में करेंगे ताकि बॉडी में जो फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं वो ना हो, इमोशनल अप एंड डाउन जो हो रहा है वो ना हो, ट्रॉमा से जो गुजरे हैं वो भूल नहीं पा रहे हैं तो वो कैसे होगा। तो वो मैं अपने मास्टर क्लास में सिखाती हूँ। यहाँ क्यों नहीं सिखाती हूँ, उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि वो गाइडेड होना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत ऐसे ऐसे डार्क कॉर्नर्स में इंसान जाता है उस सेशन के दौरान जहाँ पे अगर गाइड नहीं है, गाइड को पता है कहाँ पे टर्न करना है, कितने सेकंड्स रुकना है, कितने सेकंड पे उसको टोकना है ताकि वो वापस बाहर आए। तो अगर मैं यूट्यूब पे डाल दूंगी ये चीज़ें तो लोग चालू करेंगे और डिप्रेशन में चले जाएंगे। यही रीज़न है कि मैं चक्र यहाँ नहीं सिखाती हूँ, क्योंकि वो गाइडेड होना चाहिए। दीदी मैं किसी वजह से ऑनलाइन नहीं कर सकती हूँ तो क्या मुझे इसकी रिकॉर्डिंग मिल सकती है? वो शायद ये सिल्वा की बात कर रही हैं। देखिए रिकॉर्डिंग, मैं अपने सेशंस रिकॉर्ड नहीं करती हूँ कोई भी वेबिनार, क्योंकि मैं प्राइवेसी में बहुत बिलीव करती हूँ। कोई भी आया है बहुत वनरेबल स्टेट में आया है, कुछ चीज़ों को डिस्कस करने आया है, उसको रिकॉर्ड करने से क्या होता है वो खुल के नहीं बात कर पाते हैं, तो मैं रिकॉर्ड नहीं करती हूँ सेशन। सिल्वा में आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिलेगी, सिर्फ वो जो 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 एक्सरसाइजेस करने हैं उस चीज़ों की, मतलब जो मेंटल एक्सरसाइज है उसकी। फिजिकल कुछ भी नहीं करना होता है सिल्वा में, तो जो मेंटल एक्सरसाइज है उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी। बट वो मैं आपको दे भी दूंगी, तो जब तक आपने सीखा नहीं कैसे यूज़ करना है तो मत समझ नहीं आएगा, तो मैं कहूँगी रुक जाइए। अगर नहीं अटेंड कर सकते हैं तो बाद में कभी आएगी तो आप कर लीजिएगा। दीदी प्लीज रिप्लाई दीजिए, मुझे जॉब करने का मन नहीं करता, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, क्या मैं हर रोज मनी अफर्मेशन बॉब प्रॉक्टर की जो है इस चैनल पे उसको हर दिन रात भर सुनते सुनते सो जाऊं तो क्या मनी अपने आप आ जाएगा? और एक वाइट बोर्ड पे लिख भी दिया है, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ दैट आई हैव अ परफेक्ट जॉब विद अ परफेक्ट सैलरी, क्या अफर्म करूं? प्लीज रिप्लाई। ओ माय गॉड, आप क्या कर रही हैं? आपको जॉब करने का मन नहीं है तो व्हाइट बोर्ड पे क्यों लिखा आपको जॉब चाहिए? यही कंफ्यूजन मैं बोलती हूँ इंसानों को, कंफ्यूज मत होइए। क्या चाहिए? पैसा चाहिए, जॉब चाहिए, क्या चाहिए? आपको जॉब करने की इच्छा नहीं है तो व्हाइट बोर्ड पे क्यों लिखा जॉब चाहिए? बॉब प्रॉक्टर के मनी इन्फॉर्मेशन लगा के सुन लीजिएगा, और आपको बिलीव ही नहीं है कि पैसा आ सकता है तो पैसा कैसे आ जाएगा?
आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? आपको इतने सारे सक्सेस स्टोरी दिख रही है मेरे चैनल पे, मेरे चैनल के हर चैनल पे सुनने को मिलता है, जहां जाइए वहां दिखता है। तो मैं आपको बोल रही हूँ, बार बार पैसा मैनिफेस्ट करना सबसे इजी काम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, फिर भी आप पूछ रही हैं हो जाएगा। मैं तो बार बार बोल ही रही हूँ, बट आपको बिलीव नहीं है कहीं, और जब तक बिलीव होगा नहीं तब तक मैनिफेस्टेशन होता नहीं है। और जॉब आपको करनी है ही नहीं तो जॉब क्यों लिख रखा है आपने कि मुझे जॉब चाहिए? तो आप रेजिस्टेंस तो खुद ही दे रही हैं। व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया जॉब चाहिए, और यहाँ मन नहीं है जॉब करने का, तो जॉब कैसे आएगा अच्छा आपके पास? मुझे जब पैसा चाहिए था, जब मुझे था कि मुझे सेल्फ रिलायंट बनना है, मुझे कहीं से पैसा कमाना है, जब मेरे पास 2 साल कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, तो मैंने कोई किंतु परंतु नहीं दिया कि ऐसा होगा तो ही आना चाहिए। मैंने कहा मुझे पैसा चाहिए, चाहे वो किसी भी सोर्स से आए। मैं हर एक काम करने के लिए रेडी थी, और अपने फियर को, अपने लॉजिकल माइंड को तैयार कर रही थी हर एक सिचुएशन के लिए। मुझे इम्पल्स आई तुम समोसा बनाना सीखो, तो मैंने समोसा बनाना सीख लिया, क्योंकि मैं अपने फियर को खाना नहीं देना चाहती थी कि ऑस्ट्रेलिया जाओगी तो काम नहीं मिलेगा। मैं हर एक वो काम के लिए रेडी थी कि जो भी काम मिलेगा मैं करूंगी, क्योंकि मुझे पैसा चाहिए, अल्टीमेटली पैसा आना चाहिए। और हुआ क्या, मुझे तो वो कोई भी काम नहीं करना पड़ा, मुझे यहाँ के समोसे बना के बेचने नहीं पड़े, मुझे कोई सफाई वाली काम नहीं करनी पड़ी, मुझे ऑफिस का ही काम मिला। तो आपको अपने फियर को कैसे मारना है वो तो आप ही सीखिएगा, आपको ही पता है। और ये कंफ्यूजन मत कीजिए, आप कैसे मैनिफेस्ट कीजिएगा कुछ भी। आपको चाहिए, आपको बिलीव नहीं है, आपको नहीं चाहिए, आपने लिख रखा है। आप समझ रहे हो आप क्या कर रहे हैं? जो चाहिए वो लिखिए, वो सोचिए, और वो बिलीव कीजिए कि आपको मिल जाएगा, तो वो मिलता है। और उस चीज को पाने के लिए कोई भी रास्ता आप लेंगी, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, कोई भी मेहनत करने को आप रेडी हैं तो आपको मिल जाती है। और मेहनत करनी नहीं पड़ती, यही होता है अलाइंड एक्शन। जब आपको आपकी मतलब की चीजें मिलती है तो आपको अपने आप वो काम करने की इच्छा होगी, और आपको वो चीज मेहनत नहीं लगेगी, वो चीज आपको बहुत एक्साइटिंग लगेगी करना। ठीक है, तो ये रहा आज मेरा फ्राइडे का एपिसोड। मिलती हूँ मंडे को इब्राहिम के लेक्चर के साथ, और मंडे को मैं डालने वाली हूँ इब्राहिम की लेक्चर वेट लॉस को लेके, और वेंसडे को मैं लाने वाली हूँ होपोनोपोनो ढंग से कैसे करते, क्योंकि आप लोगों ने इतना ज़्यादा होपोनोपोनो को बोला और प्रेयर कर रहे थे, मैं तो जानती नहीं थी, तो मैंने रिसर्च कर दी उस पर। तो मैं लेके आ रही हूँ वो दोनों एपिसोड नेक्स्ट वीक। लंबी वीडियो हो गई है, एंड तक देखिएगा। बाय बाय।